Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, आपके मंथली टेस्ट ओवर हो चुके हैं. Now it's time to learn something new. So today in this class, we will learn a new topic in EVS. Without wasting time, let's start. So this is our chapter 15, matter. आज हम मैटर के बारे में जानेंगे. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैटर. मैटर होता क्या है. सी, अपने आसपास नज़र घुमाओ. आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर ही है. इट मे बी अ पेंसिल, अ बुक, अ बोतल, चेयर, टेबल, फर्नीचर, एनीथिंग, water, all things are matter. See, the things which occupy space and have some weight. वाटर के अंदर वेट होता है. वाटर को जब आप बोतल में फिल करते हो तो उस बोतल के अंदर वेट आता है, राइट. इट मीन्स वाटर ऑल्सो हैव वेट. वाटर बोतल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. सो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर. ये पेंसिल है, राइट. ये पेंसिल एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एंड इट ऑल्सो हैव वेट. अगर हम इसे पकड़ते हैं तो इसमें वेट है, राइट. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैटर. सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट आर कॉल्ड मैटर. सो आज हम मैटर के बारे में ही जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Hi, friends! You know that we are surrounded by a number of things around us, like plants, water, table, chair, vehicles, air, animals, etc. All these things occupies space and have some weight. These are called matter. Let's learn about it. Do you know what is a matter? No, ma'am. Name some things which you find around you. Table, chair, charts, and fan. Chalk, blackboard, water can, books, and bag. Good. Apart from this, we have trees, plants, animals, vehicles, lakes, sea, buildings, machines, and air around us. Any substance that have weight and occupies space is called matter. All the above said are matter. States of matter. All matter is made up of tiny particles called molecules. They are attached to one another by some force. All the molecules of a substance are same. Different substances have different molecules. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. Tell me some examples of solids. Chalk, wood, iron, etc. Yes, in solid substances, the molecules are packed very closely to each other and are strongly bonded. Because of this, solids have a definite shape and size that cannot be changed easily. We have to apply force to change it. Tell me some examples of liquid. Water, milk, kerosene, petrol, and juices. Yes, in the liquids, the molecules are not very closely packed. Liquids can flow, so they are called fluids. They do not have a shape of their own like solids, but take the shape of the containers in which they are poured. They always have a definite volume. Gas is the third state of matter. An example is the air, which is a mixture of oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and other gases. In gas, the molecules are very loosely packed
and have strong force between them to stay together. Gas can be contained in a small flask or a big container. Change of states. One interesting thing is that the state of some matter are interchangeable. A very common example is ice. Ice is a solid state which on heating melts into liquid, that is water. This process is called melting. The water on further heating changes into water vapor, which is gas. This process is called evaporation. Now, if we cool this water vapor, it again changes into the liquid state of water. This is called condensation. The water, when kept in an ice tray in a fridge, turns into ice. This process is called freezing. Thus, matter can be in solid, liquid and gaseous state. The formation of rain in the water cycle is a natural example of the change of state of matter. So, as you all learnt about the matter and its different states, now let's read about it. What is matter? There are so many things around us. All these things differ from each other in shape, size and color. See, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? एंड सभी डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर की होती हैं, राइट? दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सभी डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं. जो आपकी वाटर बोतल है वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? प्लास्टिक, राइट? एंड ये जो आपकी बुक है इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है? पेपर. सो सभी का मटेरियल डिफरेंट होता है. ऑल दीज थिंग्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ टू. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मीन्स इनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है. When we observe them carefully, we find that all of them have some common properties and qualities. जब हम इन्हें carefully observe करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इनमें कुछ common properties और qualities भी हैं. All things occupy space. They have some weight too. The things which occupy space and some weight are called matter. See, as I said you earlier, जो things स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनमें वेट होता है वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेन, बस, कार, यूटेंसिल्स आर कॉल्ड मैटर. द अमाउंट ऑफ स्पेस द मैटर ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. सी, द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर ऑक्यूपाई, फॉर एग्जाम्पल ये है एक वाटर बॉटल. अब ये यहाँ जो ये स्पेस कवर कर रही है ये क्या कहलाएगा? इट्स वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ स्पेस द मैटर ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. अब इस वाटर बॉटल के अंदर जो पानी ने अपना स्पेस कवर किया है वो भी क्या कहलाएगा? वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर बाय द मैटर. ऑल द मैटर इज मेड ऑफ several tiny particles. These particles are so small that we cannot see them with our naked eyes. See, जितने भी मैटर हैं, anything, वो सब किससे बने हैं? वो सब एक टाइनी पार्टिकल से बने हैं जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. With the help of microscope, we can only see those particles. These particles are called molecules. और वो particles क्या कहलाते हैं? वो molecules कहलाते हैं. Different substances have different types of molecules. Different substances have different types of molecules. ये जो आपका बुक है इसमें different molecule होगा. पानी में different molecules होंगे. वाटर बॉटल है उसमें different molecules होंगे. So different substances have different molecules. States of matter. So अब हम matter की different states के बारे में जानेंगे. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. Solid. Stone, wood, iron table, bed, etc. are all the example of solids. They are very hard to touch. They do not change their shape or size even after passing them or changing their place. So all the solids have the definite shape and volume. In solids, the molecules are closely packed. See,
सॉलिड थिंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक वॉल्यूम होता है। अब देखो ये पेंसिल भी एक सॉलिड फॉर्म ही है क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है। वी कांट चेंज द शेप ऑफ दिस पेंसिल, बट अगर हम इसे फोर्स लगा के चेंज करेंगे तो ये टूट जाएगी और इसकी शेप चेंज हो जाएगी। बट जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं स्टिल वो पैक्ड फॉर्म में है, दैट्स वाई इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। सो जितने भी सॉलिड आइटम्स होते हैं, वुड, स्टोन, टेबल, इन सब की एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइज बाय द मैटर्स इज कॉल्ड द वॉल्यूम, राइट। सो सॉलिड में आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स पैक्ड में होते हैं, मीन्स ऐसे। नाउ कम टू लिक्विड। Liquid, you all know all the liquid items, water, milk, oil, juice, cold drink, etc. are the examples of liquids. We can touch them, but we cannot pick them up with our hands or fingers. क्या आप किसी भी लिक्विड आइटम को या फिर वाटर को हाथ में ले सकते हो? हम ले तो लेते हैं बट वो फ्लो हो जाता है, राइट। जस्ट बिकॉज इट इज़ लिक्विड, दे फ्लो ऑन द plain surface when we pour them. Liquid takes the shape of the container they are put in. लिक्विड जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। ये देखिए डिफरेंट कंटेनर्स में हमें डाल के दिखाया हुआ है यहाँ पे वाटर, एंड जैसी उनकी शेप है वैसी ही शेप में वो चला गया। Pour some liquid in containers having different shape. We see that it takes the shape of the container, but the volume of the liquid does not change with the different shapes of the container. But जो volume है means जो space occupy करता है वो change नहीं होता with the different shapes of the container. in different containers के अंदर जो पानी की volume है, water का जो volume है वो same ही रहेगा। So all the liquids have the definite volume but no definite shape. So सभी liquids की एक definite volume होती है but they don't have definite shape just because different shape की container से उनकी shape change होती रहती है। In liquids, molecules are not closely packed. They can move freely as compared to solid. See, solid में एक definite shape है, that's why उनके molecules packed रहते हैं। But liquid की definite shape नहीं है, so इसके molecules देखो ऐसे होते हैं। इसके molecules ये बिल्कुल इसकी solid की तरह packed नहीं है, ऐसे रहते हैं थोड़े space में। Now let's learn about gas. Air, oxygen, carbon dioxide, etc. are all the examples of gases. In gases, molecules are very far apart from each other. They are free to move all around in the space, so the gases do not have any shape or volume. सी गैस की कोई एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। ये जो एयर हमारे ऑल अराउंड रहती है, तो क्या आप एयर को देख पा रहे हो? नहीं ना। जस्ट बिकॉज एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री, वो फ्री हैं, वो फ्री कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये देखो ऐसे, इनमें इतना ज़्यादा स्पेस होता है जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड लिक्विड में कम स्पेस होता है क्योंकि लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम है भले ही उसकी एक डेफिनेट शेप नहीं है, एंड सॉलिड की डेफिनेट शेप है, दैट्स वाई इसकी मॉलिक्यूल पैक्ड रहता है। आई होप यू गेट द डिफरेंस। सो गैस की ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, एंड सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। तो ये थे स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर ऑल द मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस। सी, जितने भी मैटर हैं वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करते हैं। एयर जो गैस है, एयर, इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज द स्पेस। अगर हम बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो बैलून के अंदर एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई तो करा ना, राइट। सो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सो ऑल द मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस। सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट गैसेज डू नॉट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। सी, जो सॉलिड्स एंड लिक्विड आइटम होते हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। सॉलिड्स हैव द फिक्स्ड शेप while the liquids and gas take the shape of the container in which they are contained.
सॉलिड की फिक्स शेप होती है, बट लिक्विड और गैस का क्या है, वो जिस आइटम में जाते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। लिक्विड जिस कंटेनर में जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। एयर जिस शेप के आइटम में जाती है वो उसी की शेप ले लेती है। ये देखो हमें डिफरेंट शेप दिखा रखा है, बॉल, बैलून, पैराशूट, टॉयज़, इन सब के अंदर एयर फिल होती है, राइट। सो वो उसी की शेप में एयर होती है। एयर हमें दिखती तो नहीं है, बट still air occupies the space as well as it take the shape of the different items in which it is filled, right. Gas can dissolve in liquid. For example, air is dissolved in water of ponds, rivers, streams, etc. This dissolved air is taken by the aquatic plants and animals for breathing. See, liquid के अंदर भी एयर होती है, हम एयर को नहीं देख सकते, और वो एयर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दोज विच आर ग्रो इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो वो उस एयर की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, राइट। सो गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है इसलिए हमें वी डोंट गेट अबाउट इट। बट हमें एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है जिसकी मदद से ये पॉइंट क्लियर होगा आप सबको। टेक अ बोटल ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोक, पेप्सी and shake it well. Now open the cap. Bubbles come out of the bottle continuously. These bubbles are not nothing but carbon dioxide gas dissolved under pressure in it. When the cap opens, the carbon dioxide gas comes out quickly in the form of bubble. It shows that the gas dissolved in the water. See, ये जो पॉइंट है गैस डिजोल्व इन लिक्विड, इसको क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट शो किया गया है। आपने कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोतल होती हैं उसे शेक करके देखा होगा तो क्या होता है, वो कोल्ड ड्रिंक आप एकदम से जब कैप ओपन करोगे फिर शेक करने के बाद तो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। वो किस लिए होता है, जस्ट बिकॉज उस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल है, वो एकदम से बाहर आती है फिर, एंड इट मिक्स विद द अदर गैसेज इन द एयर, राइट। सी, ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, अगर हम इसे ऐसे शेक करूँगी, ये देखो अंदर बबल्स बन रहे हैं, बट अगर मैं कैप ओपन कर दूंगी तो एकदम से गैस निकलेगी। वो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इससे क्या शो होता है कि ये जो लिक्विड है इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी गैस डिज़ोल्व है, जो हम देख नहीं सकते बट इट इज़ देयर, राइट। फिफ्थ इज सम सॉलिड्स कैन डिज़ोल्व इन लिक्विड. When some solid item dissolve in liquid, it breaks into very tiny particles. These tiny particles spread quickly in the whole liquid. This liquid is called the solvent. The solid dissolved in it is called the solute, and the mixture thus formed is called the solution. See, हम solid item को भी liquid में क्या कर सकते हैं, dissolve कर सकते हैं, right? For example, water is a liquid, right? And sugar is a solid item. Sugar की एक definite shape होती है. अगर हम शुगर को पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगी, वो टाइनी पार्टिकल्स बन जाएंगे, हमें नहीं शो होंगे, जस्ट बिकॉज शुगर मिक्स हो जाएगी वाटर में. सो जो लिक्विड है मीन्स जो वाटर है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा सॉल्वेंट है. एंड द सॉलिड डिज़ोल्व इन इट इज़ कॉल्ड द सोल्यूट. जो सॉलिड डिज़ोल्व हुआ है मीन्स वो शुगर क्या है हमारे लिए, सोल्यूट है. और जो मिक्सचर निकल के आया है, अब वो पहले नॉर्मल वाटर था, अब वो स्वीट वाटर बन गया है, जस्ट बिकॉज उसमें शुगर डिज़ोल्व हो गई है. तो वो मिक्सचर क्या है, अब हमारा सॉल्यूशन है. When the liquid has no more space to fill in with the solid, the solution is thus called the saturated solution. See, फैक्ट फाइल में हमें बताया गया है कि when the liquid has no more free space to fill in with the solid, लिक्विड के अंदर फ्री स्पेस होता है क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है बीच में, राइट. तो ये जितना भी फ्री स्पेस है, जब हम उसे सॉलिड से फिल करने की कोशिश करते हैं, मीन्स वाटर के अंदर अगर हमने शुगर मिक्स करी तो वो फिल स्पेस फिल हो गया. बट अगर हम शुगर मिक्स करते जाएंगे बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो शुगर मिक्स नहीं होगी और वो नीचे बैठ जाएगी.
वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन द लिक्विड हैज़ नो मोर फ्री स्पेस टू फिल द सॉलिड। जब लिक्विड में फ्री स्पेस नहीं होता सॉलिड फिल करने के लिए, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है हमारा। सो देयर इज़ अनदर एक्सपेरिमेंट, टेक सम सॉल्ट एंड मिक्स इट in a glass of water. Stir the water well with a spoon. Now place the glass on the table and do not disturb it. You will find that all the crystals of salt dissolve in water to form a solution. This solution is uniformly salty. This shows that the solid dissolve in liquid. Let's do it. See what I have taken. I have taken a glass of water and salt. अब हम salt को mix करेंगे किस में? Water में, means liquid में. I will take 1 tablespoon and आपने देखा कि सॉल्ट पानी में अंदर चला गया. नाउ वी विल मिक्स इट. सो क्या आपको सॉल्ट नज़र आ रहा है? नहीं ना, जस्ट बिकॉज जो सॉल्ट इज़ व्हाट, द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड सोल्यूट. सो ये जो हमारा सोल्यूट था वो किस पे डिज़ोल्व हो गया? हमारे लिक्विड पे डिज़ोल्व हो गया. और ये लिक्विड क्या है? हमारा सॉल्वेंट. और ये जो सॉल्टी वाटर अब हमारा बन गया है, ये हमारा क्या है? इट इज़ आवर सॉल्यूशन. सो द सॉलिड दैट गेट मिक्स विद द लिक्विड इज कॉल्ड द सोल्यूट, द लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जो मिक्सचर निकल के आया है वो क्या है? हमारा सॉल्यूशन. आई होप नाउ यू गेट द डिफरेंस. ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, राइट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन. यू गेट इट? नाउ मूविंग फर्दर, ऑल स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. सी, मैटर के कितने स्टेट्स हैं? 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम पढ़ेंगे कि वो कैसे इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, मीन्स आपस में चेंज हो सकते हैं. ऑल द मैटर्स चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस. दे आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. सी, मैटर के 3 स्टेट्स हैं एंड दे कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मीन्स हम सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड 2 टाइप्स के चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सो लेट्स learn about them. So first one is the physical changes. When there is any change in the size, shape or state of the matter substance, it is called the physical change. जब साइज, शेप और स्टेट ऑफ मैटर, जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट में चेंज आए और उसके साइज़ में, शेप में चेंज आए तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है. We can get back the previous form of the substance either by removing the condition causing that change or by reconstructing the same condition in which the substance was. Thus the physical changes are reversible or interchangeable. Let us observe. See, जो physical change होता है वो reversible होता है. Reversible means हम उसे रिवर्स कर सकते हैं. अगर हमें किसी सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज लेके आए हैं, हम उसकी फॉर्म चेंज कर दी, हमने उसकी स्टेट चेंज कर दी, हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं. मतलब हम उसे दोबारा से ही वैसा ही बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर होता है, आइस क्यूब कंटेनर होता है, आप उसमें वाटर को फिल करते हो, फिर उस कंटेनर को किस में रखते हो? फ्रीज़र में रखते हो, राइट? क्या होने के लिए? फ्रीज़ होने के लिए. फिर वो वाटर आपका फ्रीज़ हो जाता है और क्या बन जाता है? आइस बन जाती है. तो वाटर क्या था? हमारा लिक्विड स्टेट था मैटर का, राइट? एंड जो आइस निकल के आई है, जो आइस बनती है, वो क्या है? वो सॉलिड स्टेट है. यस. एंड अगर हम उसी आइस को मेल्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वो फिर से लिक्विड बन जाएगी. एंड जब हम लिक्विड को हीट पे रखते हैं, अगर उसे बॉईल करते हैं पानी को, तो उसमें से क्या निकलते हैं? उसमें से गैस निकलती है. सो लिक्विड गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड लिक्विड को हम सॉलिड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं एंड सॉलिड को हम लिक्विड में और गैशियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. सो ये फिज़िकल चेंजेस हैं. आइस की एक डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट वॉल्यूम था, हमने उसे मेल्ट करके लिक्विड बना दिया, जिसकी
अब कोई डेफिनेट शेप नहीं है, सो इसलिए इसे फिजिकल चेंज बोला गया है। Experiment number 3. Take some ice cubes and leave them out in the plate. The ice cube melts into water and now boil this water. The water changes into water vapor. Water vapor means जो गैस के अंदर जो हमारी गैस बनी है, जो आप पानी को जब बॉयल करते हैं तो जो ऊपर से पानी की गैस निकल रही होती है जिसे हम भाप बोलते हैं, राइट, तो वो क्या है, वो वाटर वेपर्स है। Thus we observe that the solid becomes the liquid and the liquid becomes a gas on heating. Similarly, in the reserve process on cooling, water vapor changes into water and the water changes into ice. So, ice solid था, हीट करा, वाटर बन गया, फिर वाटर को हीट करा तो वो वाटर वेपर बन गया। अब इस प्रोसेस को हमें रिवर्स करना है, मीन्स वापस से उसी कंडीशन में लेके जाना है। तो जो वाटर वेपर्स है, सी आप पानी को बॉयल करते हो, उसमें से भाप बन रही होती है, अगर आप उस पर प्लेट रख दोगे तो वो जो गैस है वो अंदर ही रहेगी उस कंटेनर के, और फिर वो प्लेट पे आपने देखा होगा पीछे क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। मीन्स वो जो वाटर वेपर्स थे वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गए, आफ्टर कूलिंग लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, पानी बन गए, राइट। और फिर अगर इसी लिक्विड को फिर से कूल करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो आइस बन जाएगी। सो ये प्रोसेस रिवर्स हो गया ना, दैट्स वाई फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल तो है ही कि हम सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैशियस में कर सकते हैं, एंड रिवर्सिबल भी है कि हम गैस को दोबारा से वाटर एंड वाटर को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये था फिजिकल चेंजेस। एक और एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, टेक 3 पैन्स, पुट अ पीस ऑफ बटर इन फर्स्ट पैन, a piece of wax in the second pan and a plastic pan in the third pan. Now heat them equally. We observe that the butter melts first and the plastic melts last. Now cool the pans. We observe that they become the solid again. See, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 फ्राई पैन लिए हैं, एक में बटर डाला, एक में क्या डाला, वैक्स, एंड थर्ड में पैन। सो जो बटर होगा वो जल्दी से मेल्ट होएगा जस्ट बिकॉज वो फर्म स्टेट है सॉलिड की। फर्म स्टेट मीन्स वो बहुत सॉफ्टन होता है, उसकी एक शेप तो होती है बट वो सॉफ्ट होता है, इसलिए वो ईज़िली जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। एंड वैक्स, जो कैंडल्स होती हैं उनमें वैक्स होती है ना, राइट। सो हीट करने पे वो धीरे धीरे क्या होती है, मेल्ट होती है। एंड पेन एक प्लास्टिक का बना हुआ है, उसका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड ही है, बट अगर हम उसे हीट करेंगे तो उसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। बट अब जब हम किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को मेल्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आफ्टर मेल्टिंग जो वो सॉल्यूशन निकल के आता है, अगर हम उसे थोड़ी देर कूल करें तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही जो वैक्स होती है, कैंडल बर्न होती है तो उसमें से आपने देखा होगा वैक्स मेल्ट हो रहा होता है, बट अगर वो वैक्स को आप फ्लोर पे टपकाओगे तो थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वो दोबारा से एक डेफिनेट शेप की वैक्स बन जाएगी, राइट। ऐसे ही सेम विद द बटर और घी भी ले सकते हैं आप। आपने देखा होगा हम घी को मेल्ट कर लेते हैं, बट अगर हम उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें तो वो क्या बन जाता है, दोबारा से वैसी जिस कंटेनर में हमने उसे लिया होता है वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है और अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। सो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स थे। आई होप यू गेट अबाउट व्हाट फिजिकल चेंजेस। Now come to chemical changes. When there is permanent change in the state and composition of a substance and the substance does not come back to its original form, it is called the chemical change. During a chemical change, new substances are formed. Let us observe. See, physical change तो क्या था, physical change में हम जो मैटर की स्टेट थी उसको कन्वर्ट कर सकते थे आपस में, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को अगेन लिक्विड, लिक्विड को अगेन सॉलिड, और वो रिवर्सिबल भी थी। बट ये जो केमिकल चेंज होता है इसमें क्या बताया गया है कि केमिकल चेंज इज व्हाट, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स जिस
स्टेट का हम मैटर लेंगे, सब्सटेंस लेंगे, उसकी शेप, साइज और कलर में परमानेंट चेंज आ जाएगा, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, वो केमिकल चेंज है। इसमें एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है। टेक सम शुगर इन अ स्पून, हीट द स्पून फॉर सम टाइम, द शुगर चेंजेस इट्स कलर एंड आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ब्लैक, नाउ इट इज़ नो मोर अ शुगर, a new substance is formed which cannot be changed back into sugar on cooling. This type of change is called a chemical change. See, आप शुगर लेंगे, शुगर इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर, राइट। शुगर को अगर हम हीट करते हैं तो वो शुगर मेल्ट हो जाएगी, राइट। वो क्या बन जाएगी, जिसे हम चाशनी भी बोलते हैं, चाशनी बन जाएगी, राइट। फिर अगर हम उसे कॉन्टीन्यूसली हीट करते रहेंगे तो वो शुगर बर्न हो जाएगी। फिर हम उस शुगर को दोबारा से शुगर में, अगर हम उसे कूल करेंगे तो हम उसे उसमें दोबारा से वही टाइनी पार्टिकल्स जैसी शुगर होती है वैसी हम उसे फॉर्म नहीं कर सकते, दोबारा से हम नहीं बना सकते, जस्ट बिकॉज जो शुगर का स्टेट था सॉलिड वो परमानेंट चेंज हो गया, उसकी मॉलिक्यूल्स में परमानेंट एक चेंज आ गया। सो वी कांट रिवर्स दैट प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल चेंजेस में हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, फिजिकल चेंजेस में हम रिवर्स कर सकते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये था आपका चैप्टर मैटर। इन दिस वी लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने ये भी सीखा कि जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड में पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़े फ्री अप होते हैं, एंड गैस में पूरे फ्रीली मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट बिकॉज गैस को वी कांट सी इट। एंड वी ऑल्सो लर्न द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द physical change and chemical change of matter. So this is all about your chapter. I hope you understood all the things. So thank you and take care.